Good evening, students. Welcome to the YouTube channel of ATS. Myself, Lokesh, and I am going to teach you Indian polity, right? And the way I will teach, that is not only important from the point of view of UPSC. We'll try to cover each other important exams like CDS and other various important exams of the government, whether it is related to SSC or whatever. So I will cover Indian polity in a very holistic manner so you can understand each and everything, right? So we'll divide the syllabus into the 5 sections. In the first section, we'll try to see the constitutional framework. कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रियम्बल से आज. उसके बाद में विल डू मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. उसके बाद में विल ट्राई टू डू द सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देन वी विल ट्राई टू डू what we call basic structure of the Indian Constitution, how we amend the Indian Constitution. We'll try to do all these first constitutional framework, all these important. Then we will go to the main course like fundamental rights, DPSP, fundamental duties. Then we will see the central government framework, in which we'll try to do the parliament, the parliamentary committees, and then we'll do governor, then president, right? And we'll do the judiciary in an integrated manner. I will teach you first Supreme Court, then High Court, and then the Lok Adalats and other tribunals, right? We'll do the entire judiciary in a single class only, right? And then we'll solve these important bodies, constitutional bodies, Finance Commission, UPSC, Election Commission, all these. After that, we will do non-constitutional bodies like Niti Aayog and other example various non-constitutional bodies. Okay. And in the last or in the 5th or 6th unit, we'll do the miscellaneous topics, right? GST and other important amendments, which are the recent amendment acts into the Indian constitutions. Okay. So this is how we will do our, and one thing I want to promise you here is whatever I will teach you in the class, if you read that much only, if you make the notes of you can pause the video, right? And you just sit with your copy and pen, and whatever you feel that is important, you just note it down, right? Whatever I will taught you in the class, if you read that much also, I'm guaranteeing you that 80% of the questions you will able to manage of the Indian polity, right? 100% to nobody can guarantee, right? But I am assuring you, because polity section is very easy. When we talk about specifically in particular to UPSC, every year, nowadays we are seeing the trend that every year 15 to 16 questions, on an average 12 to 13, but sometimes it goes up to the 15 and 16. So if you see the number, 24 marks to 16 is 32. The days when the cutoff is going 90 to 95, if you are able to score 30 marks or 25 in the Indian polity, rest you have to do very less. If you do polity also with 100% or 90% accuracy, I am guaranteeing you that you will be able to sail the prelims very easily. Got my point? Now we'll start today's topic, that is Indian. We'll start with the preamble of the Constitution, right? Which is the very fundamental. Every year, directly 1 or 2 questions they ask you from this topic. Okay, what is the preamble? See, preamble is in a set of document, or what is the significance of preamble, right? First of all, we'll try to learn from where we have taken this preamble or the idea of the preamble. See, American Constitution is the first constitution in the world which starts with a preamble, right? So preamble is a set of ideas. Preamble is a guiding philosophy of our constitution. By looking our preamble, you can
have an idea that what kind of the nature of the Indian state have, isn't it? Now, what are the basis of the philosophy of a nation is, you can get an idea by looking this one page, right? So preamble is a guiding principle of our constitution, right? We'll start with the, now, as I've told you that the preamble of the Constitution of India is a briefly introductory statement that set out the guiding purpose and the principle of the document, which have an idea. See, the idea of the preamble first we get from the objective resolutions passed by Pandit Jawaharlal Nehru on 13 December 1946. Right? The objective resolution passed by Pandit Jawaharlal Nehru on 13 December was the basis of the preamble. Got my point? That is known as the blueprint of the preamble. Now, when we adopted the preamble, they can ask you this thing, भाई किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछते हैं और प्रिंसिपल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं. तो इफ समबडी आस्क यू दैट ऑन विच डेट वी अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, सो द डेट ऑफ अडॉप्टेशन इज 26 नवंबर 1949, राइट? एंड द इनेक्टमेंट जब वो फोर्स में आया, जब से ये लागू हुआ, दैट इज 26 जनवरी 1950. वी विल सी. I've already told you that the preamble of the Constitution of India is a brief introductory statement that set out the guiding purpose and the principle of the document. It indicates the source of from the document which derives its authority. अभी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि प्रियम्बल को ताकत कहां से मिलती है. प्रियम्बल को ताकत मिलती है वी द पीपल. हमारा जो प्रियम्बल है वो कहां से शुरू होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग अ सोलेमनी रिजॉल्व वी कॉन्स्टिट्यूट इनटू सोवरेनिटी, सोशियलिटी, सेक्युलरिज्म. ये एक हमें जो ताकत है प्रियम्बल में, जो सोर्स ऑफ द पावर ऑफ प्रियम्बल, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया. नाइदर द व्हाट वी कॉल पार्लियामेंट, नाइदर द जुडिशरी. कल को ये एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि द प्रियम्बल गोट्स द पावर, ऑप्शन ए फ्रॉम द लेजिस्लेचर, ऑप्शन बी एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन सी जुडिशरी, ऑप्शन डी पीपल ऑफ इंडिया. तो आंसर क्या होगा? पीपल ऑफ इंडिया. प्रियम्बल को तो पावर कहां से मिलती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पार्लियामेंट से, कि जुडिशरी से, कि एग्जीक्यूटिव से, कि लेजिस्लेचर से. प्रियम्बल को ताकत कहां से मिलती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से. गॉट माई पॉइंट? लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 और इसको अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को. ये आपको दोनों डेट्स इसमें याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब शुरुआत करते हैं प्रियम्बल की. प्रियम्बल शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग अ सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू. हम इंडिया को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड सिक्योर इट्स ऑल सिटीजन. जस्टिस, किस चीज का जस्टिस? सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ. ठीक है, ये सारी चीजें. अब आगे अपन एक एक चीज को, इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है, सोशलिज्म का क्या मतलब होता है, सेकुलरिज्म का क्या मतलब होता है, डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है, और रिपब्लिक. दैट व्हाट डज इट ऑल दीज इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कंस्टिट्यूट. ठीक है, ये अब आगे इसमें देखेंगे. इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. ठीक है, किस तरह की इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिली हुई है. फर्टर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी प्रावधान है कि इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है. गॉट माई पॉइंट? दैट भारत के अंदर एक प्रत्येक नागरिक, आइदर इट इज रिच और आइदर इट इज पुअर, एवरीबडीज इंडिविजुअल डिग्निटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, टू कीप इंडिया यूनाइट एंड इंटीग्रेटेड स्टेट. गॉट माई पॉइंट? नाउ विल बेसिस ऑफ द प्रियम्बल. सी, सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक चीज याद रखना है कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज ऑल अबाउट 3 C's. कौन से 3 C's हैं? सिटीजन, सिटीजन की इंपॉर्टेंस बताता है. कंट्री किस तरह का होगा आपका, सिर्फ प्रियम्बल को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो कंट्री है उस
उसका स्टेट ऑफ नेचर क्या है, ठीक है, किस तरह से वो जो है वो कंट्री परफॉर्म करता है, वेदर इट इज अ रिपब्लिक कंट्री, वेदर इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और या एक डिक्टेटरशिप है उस रिजीम के अंदर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो प्रियम्बल जो है इन्हीं तीन चीजों के अराउंड घूमता है, पहला सिटीजन्स, दूसरा कंट्री, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्योंकि आइडिया तो यही, ये जो मेन बॉडी थी वो तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जिसने इसको बनाया, और जो आइडिया था, जो ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रियम्बल वी हैव टेकन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर। गॉट माय पॉइंट? नाउ हमने आपको पहले भी स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूं कि प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल क्या है? एक इंट्रोडक्शन है जो कि गाइडिंग पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ, जो ये बताता है कि हमारा जो संविधान है उसकी फिलॉसफी क्या है। प्रियम्बल इज द डॉक्यूमेंट विच टेल्स द फिलॉसफी ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इतना आपको याद रखना है। कल को कोई आपको पूछे कि भैया प्रियम्बल क्या चीज है, प्रियम्बल को हमने कहां से लिया? सबसे पहले जो प्रियम्बल का आइडिया हमने लिया इंडियन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रियम्बल का पहली बार बात किसने करी? प्रियम्बल की पहली बार बात किसने करी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि भाई इसको लाना चाहिए हम लोगों को? आइडिया कहां से आया? जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वहां से इसको हमने अडॉप्ट किया, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रियम्बल जो 3 C's के अराउंड करता है, पहला सिटीजनशिप, दूसरा पहला सिटीजन्स, दूसरा कंट्री, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया प्रियम्बल की डेफिनेशन क्या है। अब इसको अपन एक एक चीज को अपन डिटेल में देखते हैं। नो, प्रियम्बल वाज एनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी एनेक्टेड टू इंश्योर इट्स कंफर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रियम्बल के बारे में आपको मालूम होगा, अलग अलग बड़े बड़े हमारे जो जूरिस्ट हैं उनका अलग अलग है। जैसे के एम मुंशी ने इसको कहा कि प्रियम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ Indian Constitution. Somebody had said that the preamble is the soul of Indian Constitution. ठीक है, तो प्रियम्बल के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग तो कहते हैं कि प्रियम्बल इज द बेसिक, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है केशवानंदी भारती केस के बाद में प्रियम्बल को ये कहा गया दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अलग अलग जो इंटेलेक्चुअल जूरिस्ट पीपल हैं, वेदर इट इज पॉलिटिकल, वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, सब ने अलग अलग राय रखी है। किसी ने कहा है कि जो प्रियम्बल है वो तो हॉरोस्कोप है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी ने कहा है कि प्रियम्बल इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि प्रियम्बल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी के लिए भी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी। गॉट माई पॉइंट? और ये फुलफिल करता है जो ड्रीम्स और एस्पिरेशंस हैं हमारे फाउंडिंग फादर, ठीक है, जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। प्रियम्बल उस ड्रीम को पूरा करता है और उस ड्रीम को दिखाता है कि किस तरह से उन लोगों की सोच थी उस टाइम पे जब उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, ठीक है, कितना मॉडर्न रहे होंगे वो उस जमाने में भी, ये चीज दिखाता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो 13 दिसंबर 1946 को किया था वो एक ब्लूप्रिंट है प्रियम्बल का, ठीक है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल। फिर उसके बाद में नानक पालकीवाला ने कहा है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूट्स द what preamble constitutes the identity card of the Indian Constitution. Somebody has said that K.M. Munshi had said that it's a horoscope of Indian Constitution. Somebody had said it is the soul of Indian Constitution. तो इस तरह से आप जब प्रियम्बल के ऊपर मेंस के अंदर कोई क्वेश्चन आएगा तो पहले प्रियम्बल की डेफिनेशन आपको लिखनी है कि भैया प्रियम्बल दैट सेट आउट्स अ गाइडिंग प्रिंसिपल एंड फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि प्रियम्बल इज नोन एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेड बाय दिस। क्योंकि आप जब भी यूपीएससी के अंदर आप जब भी किसी को कोट करके, किसी फेमस पर्सनालिटी को कोट करके कोई आंसर लिखते हैं तो उस आंसर की जो है वैलिडिटी बढ़ जाती है, उस आंसर की जो है उसको आपको एक्स्ट्रा मार्क्स आपको 100% जो है एग्जामिनर देगा। व्हाट माय पॉइंट? तो इस तरह से आपको मतलब जो भी GS1, GS2, GS3, GS4 में जो भी टॉपिक लिखा हुआ है हर टॉपिक के ऊपर आपके पास एक एक दो दो पेज के नोट्स होने चाहिए। यहां पे जो भी मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा प्रियम्बल में मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा, इसके अलावा आपको मैं इतना एतबार, इतना यकीन आप हम पे कीजिए कि जो प्रियम्बल में मैं यहां पढ़ाऊंगा उतना आप कर लीजिए। इस स्लाइड्स को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार 4 बार देखिए। प्रियम्बल में इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आएगा। इतना आपने कर लिया, दैट इज मोर देन इनफ। गॉट माई पॉइंट? फिर उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे सोर्स।
सोर्स क्या है प्रियम्बल का? मैंने आपको बताया कि प्रियम्बल को ताकत कहां से मिलती है, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो एग्जामिनर अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कल को आपको कि द सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी जुडिशरी, ऑप्शन डी वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या होगा? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये आपको मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ, ये एसएससी में भी पूछ सकता है, ये यूपीएससी में भी पूछ सकता है, ये सीडीएस में भी पूछ सकता है, ये किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ सकता है कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर प्रियम्बल क्या बताता है? नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, कि भाई नेचर कैसा है इंडियन स्टेट का। उस एक प्रियम्बल वाले पेज को आप देख के इंडिया का नेचर बता सकते हो कि इंडिया का नेचर कैसा है। तो इंडिया का नेचर कैसा है? सोवरीन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। अब इन एक एक टॉपिक्स को भी, अब ये जो एक एक कीवर्ड्स हैं इनको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे कि सोवरीन का क्या मतलब होता है, सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है, सेकुलरिज्म का क्या मतलब होता है, सेकुलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया, पहले से था कि बाद में अमेंडमेंट ला के ऐड किया गया, डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है, रिपब्लिक का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर हो गया सोर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर इंडियन स्टेट का क्या है? नेचर इंडियन स्टेट का सोवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसका प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। मतलब प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सोसाइटी में जस्टिस, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ये सब चीजों को प्रमोट करता है। ठीक है, इन चीजों, एक एक कीवर्ड्स को हम आगे देखेंगे। फिर डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन, अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। इसको हमने अडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स नॉर ए, ठीक है, हाँ, preamble is neither a source nor a prohibition upon the powers of the legislature. It is non-justificable provisions are not enforceable in the court of law. पहले इसका मतलब जानते हैं कि it is non-justificable क्या मतलब है। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, अगर वो किसी के वायलेट होते हैं तो ही और शी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द कोर्ट। ठीक है, ही कैन नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट। डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जस्टिकेबल इन नेचर नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब अगर ये कोई वायलेट करता है, मतलब सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है और आपके लिए भी बाध्यकारी नहीं है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को आप पूरा करो। एग्जाम्पल के तौर पर हमें करना चाहिए, वो बात अलग है। ठीक है, अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करते हो तो दे आर नॉट जस्टिफिकेबल इन नेचर, मतलब दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आप कुछ वो ऐसा नहीं करते हो तो आपको कोई सजा नहीं होगी। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को आप वायलेट करते हो किसी के, या सरकार करती है, एग्जीक्यूटिव करती है, या कोई लेजिस्लेचर करता है, तो किसी आदमी को अगर ऐसा फील होता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकता है, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसे ही प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल जस्टिफिकेबल इन नेचर नहीं है, मतलब ये अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो दैट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। गॉट माई पॉइंट? अब आप बोलोगे साहब कैसे? जैसे नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है? दैट इज, आपको मैंने जस्ट अभी बताया, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इज सोवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। अब सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में इक्वालिटी है क्या भाई? अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स हम देखते हैं कि भाई 1% ऑफ द पॉपुलेशन के पास 73% ऑफ द वेल्थ है पूरे स्टेट की, मतलब पूरे इंडिया की। गॉट माई पॉइंट? पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब होता है नेशन। गॉट माई पॉइंट? तो 1% ऑफ द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 73% ऑफ द टोटल वेल्थ ऑफ अ नेशन। तो डज इट सिग्निफाइज द इक्वालिटी इन द सोसाइटी? नहीं, बट लिखा हुआ तो है। अब लिखा हुआ है, जस्टिफिकेबल नेचर नहीं है तो इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। अगर इन्फोर्सेबल होता तो भाई जैसे पहले जमींदारी सिस्टम अबॉलिश किया सरकार ने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के बाद 1950s में, तो ऐसे इसको भी अबॉलिश कर सकते हैं। इसीलिए ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। गॉट माई पॉइंट? दूसरा, प्रियम्बल इज नाइदर, प्रियम्बल को ना तो लेजिस्लेचर से पावर मिलती है, नाइदर इज अ सोर्स ऑफ पावर, मतलब लेजिस्लेचर को जो पावर मिलती है वो ना तो प्रियम्बल से मिलती है और ना ये उनको रोकता है कोई काम करने के लिए। गॉट माई पॉइंट? जब ये जस्टिकेबल ही नहीं है नेचर के अंदर, जब ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, तो ना तो प्रियम्बल इज अ सोर्स ऑफ पावर एंड ना इज अ प्रोविजन फॉर द लेजिस्लेचर। जो लोग कानून बनाते हैं, हमारे लिए कानून पारित करते हैं, उनके लिए यहां पे वर्ड यूज हुआ है लेजिस्लेचर। गॉट माई पॉइंट? फिर नेचर ऑफ द स्टेट वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या इंफोसाइज करता है?
that emphasize the constitution is made by the people and for the people. जैसे हम बात करते हैं डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वी द टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो ऐसे ही नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब यहां पे ये है कि दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय एंड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये यहां पे जो कॉन्सेप्ट, ये जो वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये इंफोसाइज कर रहा है जो कॉन्सेप्ट होता है पॉपुलर सोवरेनिटी का। ठीक है, दैट गवर्नमेंट एंड जो गवर्नमेंट है वेदर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव दे आर अकाउंटेबल टू द वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि यहां पे जो सरकारें होती हैं इंडिया के अंदर, डेमोक्रेसी है तो सरकार कौन चुनता है? पीपल ऑफ इंडिया। तो अकाउंटेबल किसके लिए होंगे? ये वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए। गॉट माई पॉइंट? तो इसीलिए ये जो वर्ड अपन है वी द पीपल, ये इंफोसाइज करता है कि दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक कंट्री? वेयर पीपल हैव द सोवरेनिटी इन द एवरीथिंग। गॉट माई पॉइंट? दिस इज दैट इज इंफोसाइजिंग। गॉट माई पॉइंट? फिर अब सोवरेन, सोवरेन का क्या मतलब होता है? सोवरेन हमने बोला था ना कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट का क्या है, नेचर क्या है? सोवरेनिटी, सेकुलर, सोशलिज्म। अब एक एक इन वर्ड्स को अपन डिटेल में देखते हैं। देखो, सोवरेनिटी का मतलब अगर लेमैन लैंग्वेज में आपको कोई पूछे कि भैया सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है, ये वर्ड बड़ा परेशान करता है हमें। सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि इंडिया को ना तो अपने फैसले डोमेस्टिकली या इंटरनेशनल कोई फैसले लेने तो किसी मुल्क से पूछने की जरूरत नहीं है। मतलब हम आप स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। हमारी कोई भी इंटरनेशनल पॉलिसी को बनाने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए, या हम अपने देश के अंदर कोई भी, चाहे राज्य सरकार में हो या चाहे केंद्र सरकार में, कोई भी फैसला अगर हमें करना है तो वी डू नॉट हैव टू आस्क एनी अदर अथॉरिटी। दैट इंडियन गवर्नमेंट इज द ओनली अथॉरिटी। यू गॉट माई पॉइंट? 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया वॉज नॉट ए सोवरीन कंट्री। वाई? बिकॉज इंडिया वॉज बीन कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स who were taking our political decisions, British government. But after 15 August 1947, India became an independent country or a sovereign country. Means after 15 August 1947, India can take any decisions on its policies, either domestic or either international policies. Got my point? ना तो इंडिया के ऊपर किसी का दबाव है, ना तो इंडिया किसी के ऊपर दबाव रखता है, और ना इंडिया के ऊपर कोई जो है प्रेशर बना सकता है किसी चीज को लेके, किसी लॉज को बनाने के लिए। दिस इज सिंपली कॉल्ड सोवरेनिटी। मीन्स यू आर फुल्ली इंडिपेंडेंट टू डू योर अफेयर्स ऑफ द स्टेट। गॉट माई पॉइंट? दिस इज कॉल्ड द सोवरेनिटी। ठीक है, India is internally sovereign, free government which is directly elected by the people, makes law that governs people. No external power can dictate the government of India. मतलब कोई external power जो है वो इंडिया को डिक्टेट नहीं कर सकती। Got my point? So this is all about the sovereignty. अब मुझे नहीं लगता कि आपको जो है वो ये सब चीजें कंफ्यूजन में डालेंगे। अब अपन देखेंगे सोशलिज्म, दैट इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। देखिए, ये जो वर्ड है, अभी आपको याद होगा 2021 में एक क्वेश्चन आया था कि भाई 15 अगस्त 1947 को इंडिया की स्थिति इनमें से क्या थी? ऑप्शन ए था सोवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, एक में था डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इंटीग्रिटी। आपको एक चीज याद रखनी है कि 15 अगस्त को एक चीज हमेशा याद रखना, 1947 को ये जो कोड है SSI, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं था, ये बाद में अमेंडमेंट के माध्यम से इसको ऐड किया गया है। गॉट माई पॉइंट? 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, ठीक है। SSI का क्या मतलब है? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। एक एक का मतलब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है, सेकुलरिज्म का क्या मतलब होता है और इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना यूनिटी इन इंटीग्रिटी, यूनिटी इन इंटीग्रिटी को लेमैन लैंग्वेज में मैं आपसे समझाऊं तो इंडिया इज अ होल स्टेट, इज अ कंट्री। यूनिटी इन इंटीग्रिटी मीन्स वी आर यूनाइटेड। गॉट माई पॉइंट? एंड वी एवरीबडी हैज टू their integrity should be towards the state. Means in our India, the states doesn't have the part, or the states doesn't have the authority that they can
what we call secede from the सेंटर, मतलब राज्यों के पास ये अधिकार नहीं है कि वो केंद्र से छोड़ के कल को ये कहें कि मतलब कल को मान लो राजस्थान कहे कि मुझे इंडिपेंडेंट कंट्री बना दो, वेस्ट बंगाल कहे मुझे अनदर कंट्री बना दो, उत्तर प्रदेश कहे मुझे अलग। तो इस तरह का, जैसे पंजाब के अंदर बीच में अभी बातें उठी थी कि खालिस्तान, तो हिंदुस्तान में किसी राज्य के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अलग से देश होने की मांग करे। इंडिया होलसम फ्रॉम स्टार्टिंग जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, एट इज इंडिया इज एंटायरली यूनिटी, एवरीबडी हैज टू कीप ए फेथ इन यूनिटी इन इंटीग्रिटी। गॉट माई पॉइंट। बाकी सोशलिज्म वगैरह ये हमने ऐड कब किया? 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे। मतलब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब 15 अगस्त 1947 को हमारे प्रियम्बल की स्थिति क्या थी, तो उसमें ये वर्ड कोई कहेगा कि सोशलिस्ट वर्ड था उस टाइम पे? नहीं था। सेक्युलरिज्म वर्ड था? नहीं था। इंटीग्रिटी वर्ड था? नहीं था। ये कब ऐड हुए? ये 42nd अमेंडमेंट 1976 को ये ऐड हुए। ये आपको याद रखनी है चीजें, ठीक है ना। व्हाट डज इट मीन बाय सोशलिज्म? सोशलिज्म इंडिया ने अडॉप्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमी को। मिक्स्ड इकोनॉमी को क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है स्टेट के पास भी कंट्रोल रहता है और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास भी वेल्थ एक्यूमुलेशन का पावर रहता है। कहने का मतलब है, मतलब सरकार के पास भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या जो हमारी जो नेशनल कमोडिटी जिसे कहते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, रेलवे हो गई, ये सरकार देखेगी। और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, मतलब आप अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हो, मतलब आप प्रॉपर्टी इकट्ठी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्रिएटिंग अ वेल्थ इज नॉट अ प्रॉब्लम। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दे बोथ रन म्यूचुअली, ठीक है। जैसे कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती हैं उसमें प्योरली प्राइवेट होता है, ठीक है। कम्युनिस्ट कंट्री होती हैं उनमें प्योरली सारी जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इंडिया इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, मींस प्राइवेट प्लेयर्स हैव आल्सो हैव देयर रोल एंड द गवर्नमेंट हैज अ रोल, ठीक है। गवर्नमेंट कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स के ऊपर कंट्रोल करती है एंड प्राइवेट दे आर आल्सो हैविंग एन फ्रीडम और एन व्हाट वी कॉल इंडिपेंडेंसी टू continue their business or they can accumulate their wealth. Got my point? This is called socialism. Now हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहां पे ये वर्ड, जो ये चीजों के बारे में डिस्कस किया है वो डीपीएसपी के अंदर डिस्कस किया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो कि नॉन जस्टिकेबल इन नेचर के अंदर, ठीक है। डीपीएसपी कहां से लिया वो आगे आपको मैं डीपीएसपी वाले चैप्टर में बताऊंगा। ये जो आइडिया है इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने इसको बोरो किया था आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। गॉट माय पॉइंट। और इसके अंदर आर्टिकल 36 to 51 हैं जो कि डिफरेंट चीजों के बारे में बताते हैं और जो कि ये दर्शाते हैं कि देखो इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है। ये आर्टिकल्स हैं 36 to 51 जो कि ये बताता है दैट इंडिकेट्स दैट इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री एंड इंडियन सोशलिज्म इज अ मिक्सचर दैट इज अ ब्लेंड ऑफ गांधीयम एंड मार्क्सिज्म। यू गॉट माय पॉइंट। ये आगे होगा इसमें। इंडियन सोशलिज्म दैट इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यूनिक ब्लेंड ऑफ गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म। मतलब मार्क्सिज्म और गांधीज्म का जो ब्लेंड है, जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज इंडियन सोशलिज्म। गॉट माई पॉइंट। और बाकी जो इसको अपन डिटेल में है वी विल डिस्कस इन द डीपीएसपी वाला चैप्टर के अंदर। गॉट माई पॉइंट। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट विल सी socialism as a social philosophy stresses more on societal equity and equality. Democratic socialism aims to end the poverty, ignorance, disease and inequality opportunity observed by the Supreme Court. कहने का मतलब यह है कि सोशलिज्म है वो एक सोशल फिलॉसफी है जो कि स्ट्रेस करती है किसके ऊपर, कि सोसाइटी के अंदर अपन कैसे इक्वालिटी को प्रमोट करें। और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब होता है जो कि एंड करती है पोवर्टी को, इग्नोरेंस को या डिजीज को। अब इसमें आपको इनकम इनइक्वालिटी की बात करता है डीपीएसपी, ठीक है, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, इन चीज़ों की बात करता है, सोसाइटी के अंदर कैसे इक्वालिटी को हम प्रमोट करें, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डीपीएसपी में हम डिटेल में इस चीज़ को देखेंगे। प्रियम्बल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना मालूम होना चाहिए, बस इतना। बाकी अपन जो डिटेल्ड है वो डीपीएसपी में इसको डिस्कस करेंगे। आपको एक ब्रीफली आइडिया मैं भी स्टार्टिंग में दे रहा हूँ। गॉट माई पॉइंट।
फिर इक्वालिटी का भी डिस्कस करेंगे। सेकुलरिज्म एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि भाई इंडिया जो है नाइदर ए एंटी रिलीजन, ना हम रिलीजन का विरोध करते हैं, ना हमारे स्टेट का कोई पर्टिकुलर इंडियन स्टेट का कोई रिलीजन है। जैसे पाकिस्तान इज अ इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री, ठीक है, वहां पे हमारा ऐसे इंडिया के लिए इंडिया इज नॉट ए कंट्री, यहां पे सर्वधर्म संभव है। वी आर ए सेकुलर कंट्री मीन्स an Hindu have a equal right what a Muslim have a equal right what a Sikh have a equal right what a Christian have. In secularism means जो धर्म को मानता है वो भी ठीक है, और जो गॉड में एथिस्ट है, जो गॉड में बिलीव नहीं करता, उसके लिए भी इंडिया में प्लेस है। मतलब इंडिया जो है, हमारा जो नेचर ऑफ द स्टेट है, दैट इज न्यूट्रल ऑन द रिलीजन, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास आर्टिकल्स भी हैं 25, 26, 27, 28, ठीक है, जो ये बताते हैं कि कैसे हम सेकुलर हैं। जैसे अपन देखते हैं आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सेकुलरिज्म इंडिया कैसे सेकुलर कंट्री है, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ, मतलब लॉ की नज़र में सब इक्वल है। एक आर्टिकल है 15 में प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस्ड ऑफ कास्ट, कलर, सेक्स, क्रीड, मतलब आप किसी को कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसके सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसके रिलीजन के बेसिस पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये सब सेकुलरिज्म की बातें ही तो कर रहा है। 14, 15, 16 एवरी इंडिविजुअल हैव अ राइट, ठीक है, अनटचेबिलिटी, आप किसी को अनटचेबल नहीं मान सकते, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स, अब वो जमाना चला गया जब व्हेन वी हैव द राजाज एंड महाराजाज एंड ऑल दीज थिंग्स, सो एवरीबडी इज इक्वल, ठीक है। फिर 25, 26, 27 आर्टिकल्स हैं डिफरेंट, जिसमें अपन बात करते हैं कि दैट एवरी इंडिविजुअल हैव अ राइट टू मैनेज हिज रिलीजियस अफेयर्स, इट्स बिलीफ, फेथ, वर्कशिप, ठीक है, एवरीबडी हैज देयर ओन राइट्स। तो ये बताता है कि कैसे इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है, नाइदर हम एंटी रिलीजन हैं, ना हम किसी एक रिलीजन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। इंडियन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, दिस इज कॉल्ड इंडियन सेकुलरिज्म, राइट। एंड द इंडियन सेकुलरिज्म इज हाईली डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेकुलरिज्म, ठीक है, वो विल डिस्कस इन द फंडामेंटल राइट्स चैप्टर, ठीक है, दैट हाउ इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। गॉट माई पॉइंट? यहां आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है, दैट एवरी इंडिविजुअल हैज अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई आदमी जो है उसको एवरीबडी हैज अ राइट ऑफ देयर that they can profess, they can worship in whatever manner they want. Everybody has an independency of their creed as well. Creed का मतलब होता है ना, अपन बोलते हैं ना, nobody can discriminate on the basis of caste, color, sex, creed. Creed का मतलब होता है मान्यताएं, ethnicity को हम प्रमोट करते हैं ना हिंदुस्तान में। ethnicity की एक, जैसे ट्राइबल ethnicity की एक वैल्यू है हिंदुस्तान में, तो क्रीड का मतलब होता है मान्यताएं। हर आदमी की मान्यताओं का इक्वल प्लेसेस है। जो मैं मानता हूं वो जरूरी नहीं है कि आप जो मानो उसके साथ मैं सहमत हूं, ठीक है, बट जो मेरा अधिकार है और आपका अधिकार है, दोनों का बराबर है। आपकी मान्यताएं अपनी जगह सही है, मेरी मान्यताएं मेरी जगह सही है, किसी की कोई ऊपर नीचे वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस इज कॉल्ड रियल सेक्युलरिज्म, ठीक है। अब वो बात अलग है कि कितना हमने इसको 1947 से लेके अभी तक आज की मौजूदा परिस्थिति में हम कहां तक इसके कोर्स पे पहुंचे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में that everybody has they can freely profess, practice, propagate and the religion of their choice. In SR Bomai case मतलब everybody have a right, ठीक है, मतलब जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। धर्म परिवर्तन भी अगर कोई करना चाहे, जैसे मान ले बीइंग Hindu, tomorrow I wanted to become a Christian, or I want to become a Sikh, or I want to become a Muslim, I can. Tomorrow a Muslim wanted to become Hindu, जबरदस्ती कोई करवा रहा है, that is a criminal what we call act. But tomorrow if my belief changes, I can be whatever I want. This is called secularism. Got my point? I've already told you that article 25 to 28 fundamental right to freedom of religion highlight the secular character. We have already discussed about article 14, 15, 16, 25, 28 that these minorities can establish. अभी आपको मालूम होगा, अभी न्यूज़ में बहुत चल रहा है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसका माइनॉरिटी स्टेटस जो है वेदर वो रहेगा कि नहीं रहेगा, तो दैट कवर्स अंडर 29 एंड 30। गॉट माई पॉइंट? अभी ये चल रहा है ना, उसको अपन डिस्कस करेंगे किसी दिन। फिर आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 325 किसी भी आदमी को आप
उसकी कास्ट पे या कलर पे या उसके रिलीजन के बेसिस पे आप उसको जो है डिस इंक्लूड नहीं कर सकते या आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते वोटर लिस्ट के अंदर से। हर इंसान को वोट, एक सिंगल वोट का अधिकार है। आर्टिकल 325 ये कहता है कि किसी भी इंसान को आप जो है उसके धर्म के आधार पे, उसकी जाति के आधार पे आप उसका नाम जो है वोटर लिस्ट से नहीं हटा सकते। गॉट माई पॉइंट? दिस इज कॉल्ड द सेकुलरिज्म। फिर उसके बाद हम डेमोक्रेटिक की बात करते हैं। दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टेब्लिश्ड द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर, द रूलर्स आर इलेक्टेड। मतलब हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का मतलब है जो गवर्नमेंट है दैट इज बीइंग सेलेक्टेड और इलेक्टेड, नॉट सेलेक्टेड, इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया एंड दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया। भारत में हर रेगुलरली आफ्टर द इंटरवल ऑफ 5 years देर आर रेगुलर इलेक्शंस ना। डेमोक्रेटिक का मतलब यह है कि पीपल, व्हेन द पीपल हैव राइट टू इलेक्ट देयर रूलर्स, modern day rulers you can say that, or politicians, whatever you call, they are rulers only after we choose them. They behave like rulers only, right? So that's why I've used the word ruler. Then phrase democratic, political democracy क्या होती है? Political democracy का मतलब होता है कि हर इंडिविजुअल को राइट है कंटेस्ट इलेक्शन में, कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है ना। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब है वेदर इट इज रिच, वेदर इट इज पुअर, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, एवरीबडी हैव अ राइट टू वोट, ए सिंगल वोट, इजंट इट? दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोसाइटी में सबके लिए इक्वल प्लेस है। ये नहीं कि इस कास्ट का है तो इसको ये होगा, उस कास्ट का है तो उसको ये होगा। एवरीबडी हैज ए राइट टू सेट अप अ बिजनेस। कोई भी नौकरी कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, ठीक है। वॉट एवर यू वॉन्टेड टू डू अ बिजनेस यू कैन डू। तो दिस इज कॉल्ड सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। मीन्स वेन एवर वॉट एवर यू वॉन्टेड टू डू यू कैन परस्यू दैट थिंग, but that should be in the legal senses. You got my point? In fact, the fundamental rights, they are not absolute in the nature in the Indian constitution. That is a, we'll discuss in the fundamental right. Means democracy का ये मतलब नहीं है कि भाई we the people of India मतलब हम जो चाहें करें। जो लॉ के अंदर आपका जो एक्ट है वो दूसरे के लिए नुकसान, क्योंकि जैसे आपके लिए डेमोक्रेसी है उसके लिए भी तो डेमोक्रेसी है ना। तो आपका कोई ऐसा एक्ट नहीं हो जो दूसरों के लिए नुकसानदायक हो या दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता हो। गॉट माई पॉइंट? तो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि व्हेन गवर्नमेंट और आई मीन यू इंडिविजुअली वॉट एवर यू वॉन्टेड टू डू दैट यू हैव अ सेम इक्वल राइट्स what a highest or what you call the richest man in the society have. Means societically, economically, you have, every individual have the same rights. Now in India we have a representative parliamentary democracy. Universal adult franchise means after 18 years you can give a vote. Each and every individual have only single right to vote is single vote. अच्छा, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, राइट टू वोट क्या फंडामेंटल राइट है क्या, या कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, या लीगल राइट है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट टू वोट फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। फिर यहां पे रूल ऑफ लॉ है, पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। भाई इंडिया में 3 टाइप का सेटअप है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है, एंड जुडिशरी जो है वो इन दोनों को चेक करती है कि ये जो भी काम कर रहे हैं, जो एनी एक्ट जो कर रहे हैं, ये वेदर इट इज कंजिस्ट इन द बेसिक, मतलब अगर कुछ ये गलत कर रहे हैं तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को तो कहीं वायलेट नहीं कर रहे हैं। जुडिशरी अपना इंडिपेंडेंट काम करती है, ठीक है। जुडिशरी के अंदर किसी का हस्तक्षेप नहीं है। व्हाट माय पॉइंट? There are the certain grounds that we can say that India is a, if somebody asks you that how you can say that India is a democratic country, then you can say that in India we have a political democracy, right to vote, right to choose whom, everybody have a single vote. We have socio-economic democracy, we have universal adult franchise, we have periodic elections, we have rule of law, we have independent judiciary. These all things consist that India is a democratic country. Got my point? फिर उसके बाद रिपब्लिक है। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है कि भाई इंडिया के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हमारा इलेक्टेड होता है, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट दैट इज नॉट हेरिडिटरी। जैसे इंग्लैंड के अंदर मोनार्की सिस्टम है ना, वहां पे राजाओं का परिवार जो है वो आज भी दैट इज दे आर द हेड ऑफ द स्टेट। भारत के अंदर हेड ऑफ द स्टेट होता है राष्ट्रपति।
तो इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, यहाँ पे कोई हेरिडिटी नहीं है कि साहब कोई XYZ पहला राष्ट्रपति बन गया एग्जाम्पल तो उसी के परिवार के बाकी लोग बनेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे अभी हमारी प्रेजेंट जो मैडम हैं राष्ट्रपति महोदय हमारी देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, शी बिलोंग्स टू अ ट्राइबल कम्युनिटी। उससे पहले रामनाथ कोविंद साहब थे, वो भी ट्राइबल कम्युनिटी के थे। तो हिंदुस्तान में हर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, तो हर आदमी को अधिकार है यहाँ पे, मतलब कोई किसी की वो सोल अथॉरिटी नहीं है कि साहब यही लोग प्रेसिडेंट बनेंगे। दिस रिप्रेजेंट्स दैट इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हेरिडिटरी नहीं है, दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में जब अपन बात करते हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है दैट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया एक तरह से, लेकिन राष्ट्रपति में डायरेक्टली, जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, लोकसभा में जो MPs होते हैं, लोकसभा MP, उनको डायरेक्टली जनता चुनती है और फिर लोकसभा MPs मिलके प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक है। लेकिन जब राष्ट्रपति की बात आती है तो हमने चुना MPs को, फिर MPs लोकसभा के, राज्यसभा के और MLAs वो चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया होता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक तरह से डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया होता है। प्रेसिडेंट का चुनाव रेगुलर इंटरवल 5 साल में होता रहता है, ठीक है। ये तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, एक गणतांत्रिक जो है वो मुल्क है इंडिया, है ना, गणतांत्रिक मुल्क है एक इंडिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रिपब्लिक। फिर 54 to 55 रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ये करता है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन स्टेट क्या है, जस्टिस। जस्टिस वर्ड जो है हमने प्रियम्बल में कहां से लिया है, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। जस्टिस किस चीज का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस का क्या मतलब होता है भैया, जस्टिस किस, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड जस्टिस सोशियो इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। मैंने भी आपको पीछे बताया कि सोशल जस्टिस कैसे प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस जब आप हर इंसान को इंडिविजुअल राइट दोगे, वेल्थ एक्यूमुलेशन का, पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेसी, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। आप किसी को जैसे छुआछूत अपन जो करते हैं, ठीक है, किसी के साथ अगर ये सब बंद कर दें तो वी आर प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस टू एवरीबडी, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस, आप भी नौकरी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, आप भी एक बिजनेस डाल सकते हैं, मैं भी एक बिजनेस डाल सकता हूं, दिस कॉल्ड इकोनॉमिक जस्टिस टू द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। एवरीबडी कैन अप्लाई इन द गवर्नमेंट जॉब्स, दिस इज कॉल्ड सोशली एज वेल इकोनॉमिक जस्टिस, दैट यू हैव अ राइट टू अर्न, isn't it? You can contest in any election, I can contest in any election, this is called political justice. Got my point? तो ये होता है ऑब्जेक्टिव इन इंडियन स्टेट। फिर अब अपन बात करते हैं, दिस इज अचीव्ड थ्रू द फंडामेंटल राइट्स और DPSP, इक्वालिटी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इक्वालिटी हमने कहाँ से लिया है, जस्टिस हमने लिया था रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इक्वालिटी हमने ली थी फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। सिविक इक्वालिटी इज गारंटेड बाय द फंडामेंटल राइट्स। सिविक इक्वालिटी का मतलब राइट टू वोट और हो गया, ये सब हो गया। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ये DPSP होते हैं। इनको अपन सारा बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्कस करते हैं लिबर्टी के बारे में, शायद पॉलिटिकल इक्वालिटी ये बता ही दिया था मैंने आपको। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्कशिप, इट इज गारंटेड थ्रू द आर्टिकल 19 एंड द फ्री, मतलब लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ, वर्कशिप, वॉट एवर the way you want to express yourself you can express, whatever belief you have, everybody has an individual right to believe whatever they want. faith and worship आर्टिकल बताया था ना 25, 26, 27, 28, 29, 29, everybody has a right that freedom of religion, freedom of religion is a fundamental right इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेटर्निटी ये हमने लिया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रेटर्निटी क्या, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एम्फोसाइज करता है
कि हर एक इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एक नेशन की डिग्निटी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। मैंने आपको बताया था कि स्टेट्स के पास हिंदुस्तान में हमें बहुत सारी स्टेट, जैसे आपको याद होगा बहुत, इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर I mean roughly around 500, more than 500 princely states. They unanimously united and became the India as a nation state. तो ऐसे ही अब जो states हैं, they do not have any right to to secede from, अलग नहीं हो सकते हैं वो जो है नेशन स्टेट से, इंडिया से। मतलब टुमारो सम स्टेट कैन नॉट कम एंड से दैट वी वांटेड टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया एंड वी वांट अवर सेपरेट नेशन। स्टेट्स डजंट हैव दैट power. Got my point? This is how we express that India is a unity and integrity. Got my point? India we are assuming as a whole, as a nation. Got my point? And in fraternity means that the basic fundamental work is that Indians or the citizens of Indians, they should have the feeling of the common brotherhood. ठीक है, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल इंसान की जब हम रिस्पेक्ट करते हैं, हर एक इंसान का जब एक वैल्यू होता है सोसाइटी के अंदर या नेशन के अंदर, तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं दैट सोसाइटी इज आई मीन गोइंग इन विद द फ्लो ऑफ फ्रेटर्निटी। गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज व्हाट 51 में है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टेड स्पेशली विद द विजन ऑफ फोस्टरिंग सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी अमंग द। ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 51A में। 51 तक जो था वो तो डीपीएसपी था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। कहाँ से आइडिया लिया हमने आइडिया ये लिया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, फिर उसके बाद ये फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाती हैं। दिस इज ऑल अबाउट सिग्निफिकेंस। क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सिग्निफिकेंस क्या है भाई? गाइड जो प्रियम्बल है वो एक इंपॉर्टेंट गाइड है जो कि इंटरप्रिटेट करता है ट्रू स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। वो हेल्प करता है कि हम कैसे, it helps in determining the constitutional validity of the legislative or executive. Preamble is a horoscope of our constitution. ये सारे वर्ड्स आप आंसर में लिख सकते हैं सारी, कि preamble एक इंपॉर्टेंट गाइड है that shows the philosophy of our Indian constitution. ये preamble को देख के हम इंटरप्रिटेट करते हैं बहुत सारे। आज जुडिशरी जो है हिंदुस्तान के अंदर, सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रियम्बल के आधार पे चीजों को इंटरप्रिटेट करता है। जो आइडिया मैंने आपको बताया था केशवानंद भारती केस में आया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर कहीं मेंशन नहीं है, मैं भी आपको बताऊंगा। वो बेसिक स्ट्रक्चर जो वेरियस सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स थे उससे निकल कर आया। तो ऐसे ही जो प्रियम्बल है वो एक गाइडिंग लाइट है टू इंटरप्रिटेट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड executive. Got my point? Preamble is the horoscope of our it embodies the basic philosophy. Basic philosophy क्या है? Political, moral, religious on which constitution is based. फिर मैंने आपको बताया था that preamble is the horoscope of our Indian constitution. अब सवाल यह है सबसे इंपॉर्टेंट कि preamble जो है वो अमेंड हो सकता है क्या? अब एक बात बताओ, जब मैंने आपको कहा था कि ये वर्ड प्रियम्बल के अंदर बाद में इंसर्ट किए गए थे 42nd अमेंडमेंट 1976 में, भाई एसएसआई एक कोड वर्ड था, एसएसआई सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, इसका मतलब जब प्रियम्बल में वर्ड बाद में डाले गए 42nd अमेंडमेंट 1976 का, इसका मतलब प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। तो आपको ये याद रखना है, कल को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, तो यस स्टेटमेंट यस, नो, यस प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड। प्रियम्बल आज तक कितनी बार अमेंडेड हुआ है? एक बार हुआ है। कब हुआ है? 42nd अमेंडमेंट 1976 में, जब ये 3 वर्ड डाले गए थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी। प्रियम्बल में बी अमेंड सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस में मैंने आपको बताया, इसको हमने किया था। ठीक है, फिर ओरिजिनल प्रियम्बल डिस्क्राइब द स्टेट एज, जो ओरिजिनल प्रियम्बल था उसमें सिर्फ सोवरिन था, डेमोक्रेटिक था और रिपब्लिक था। उसके ये 3 वर्ड थे। उसके बाद में हमने क्या डाल दिया? सोशलिस्ट, क्या डाला? सेकुलरिज्म, क्या डाला? इंटीग्रिटी। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देखते हैं, प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। देखो, सबसे पहले 1960 में जब बर्बरी यूनियन केस हुआ, तो आप बस मोटा मोटी जान लीजिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रियम्बल जो है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
प्रियम्बल का सफर हम देखते हैं। 1960 में बर्बरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद में केशवानंदी भारती केस, जब 1970 हिस्टोरिक केस था, उसमें क्या हुआ, रिकॉग्नाइज द एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रियम्बल। वो जो बर्बरी यूनियन केस था वो ओवर रूल हो गया, ठीक है। और फिर क्या बोल दिया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एक चीज और एडेड की गई कि प्रियम्बल जो है उसको ये मान लिया गया कि इट मे बी अमेंड द सब्जेक्ट, यानी कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है वो मैं आपको थर्ड चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है, कि क्या क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आती है। तो बर्बरी यूनियन केस में क्या कहा कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है। केशवानंदी भारती केस में उसी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको ओवर रूल करके कहा कि प्रियम्बल ना केवल पार्ट है, वो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर उसके बाद एलआईसी केस में इसको कह दिया कि भाई प्रियम्बल जो है वो दैट इज अपहेल्ड दैट प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज अगर कोई आपसे पूछे कि प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है क्या, तो आंसर क्या कहोगे, यस, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कोई पूछे कि प्रियम्बल को आप अमेंड कर सकते हो क्या, यस, प्रियम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं। फिर आपको कोई पूछे कि प्रियम्बल को हमने जो आइडिया है प्रियम्बल का वो कौन से कंट्री से लिया है, तो आप इसको बोलोगे यूएसए से लिया है साहब, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट 1976 से कौन से 3 वर्ड लिए थे, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस चीजों के अलावा आपको कोई भी प्रियम्बल में कोई चीज छूट गई है। अगर आप यही लेक्चर एक बार दोबारा रिवाइज कर लोगे, एक बार या 2 बार, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रियम्बल से रिलेटेड कोई दिक्कत आएगी। मैं आपको 3-4 एमसीक्यूज भी करवा देता हूं किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द कंट्री। मैंने आपको बताया था कि अभी जस्ट 1 मिनट पहले बताया था कि प्रियम्बल का जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन से हम इंस्पायर हुए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, यूएसए। जापान से हमने क्या लिया था, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जर्मनी से क्या लिया था, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, कि फंडामेंटल राइट्स को हम सस्पेंड कर देंगे ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने, जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, और क्या लिया, जो ट्रेड है बिटवीन द स्टेट्स, ये वाला पार्ट भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो ठीक है, अब ये रिवर्स इंजीनियरिंग अपन ने कर दी। अपने को ये भी पता होना चाहिए कि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से अपने क्या लिया है, जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से अपने क्या लिया है, यूएसए से क्या लिया है और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है। ये सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन से कंट्रीज से हमने कॉन्स्टिट्यूशन का कौन कौन सा पार्ट लिया है। थर्ड चैप्टर में मैं आपको बता दूंगा कि we have our Indian constitution is borrowed from the various sources। तो वो वेरियस सोर्सेस कौन कौन से थे, 11 अलग अलग सोर्सेस से हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिया है वो कहां कहां से लिया हमने, विल डिस्कस इट। सेकंड क्वेश्चन में अपन देखते हैं द फिलोसफिकल पोस्टुलेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बेस्ड ऑन। जो फिलोसफिकल पोस्टुलेट्स है वो हमारे प्रियम्बल का वो कहां से किस चीज पे बेस करता है, दैट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड बाय द पंडित नेहरू 1928, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिपेंडेंस एक्ट 19, नेहरू रिपोर्ट 9। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर इंसर्टेड बाय द प्रियम्बल बाय द, ये ऑलरेडी मैं आपको अभी क्लास में करवाया था, 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। फिर विच आर द 3 फॉर्म्स ऑफ जस्टिस मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। देखो, प्रियम्बल को आपको अच्छे से, जो फर्स्ट पेज था उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जो प्रियम्बल क्या है, दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग अ सोलेमनी टू रिजॉल्व इंडिया, टू सोलेमनी रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरीन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। जस्टिस ऑफ सोशियो इकोनॉमी पॉलिटी, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। फिर फर्टिनिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये जो आपको एक वर्ड बाय वर्ड याद रखना है प्रियम्बल, उससे क्या होगा, आपके लिए आसानी रहेगी। कोई एमसीक्यू आएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए प्रियम्बल को आपको एकदम नगप करके जाना है, जिसे एकदम जो लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं, आपको रट के जाना है प्रियम्बल। अगर आपको प्रियम्बल भी रटा होगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका कोई एमसीक्यू गलत नहीं होगा। अब इतनी पढ़ाई हुई क्लास से आई एम अश्योरिंग यू दैट प्रियम्बल से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब देखते हैं अपन, विच आर द 3 फॉर्म्स ऑफ जस्टिस मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। कौन से 3 प्रकार के जस्टिस जो हैं वो प्रियम्बल में मेंशन है।
सोशल है क्या, रिलीजियस, पॉलिटिकल, रिलीजियस कहीं मेंशनड ही नहीं था, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कहीं मेंशनड था, इसको एलिमिनेट कर दिया, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमी, हिस्ट्री को एलिमिनेट कर दिया, सोशियो इकोनॉमी, पॉलिटिकल, ये तीनों लग रहा है, तो दैट विल बी द आंसर। तो जस्टिस किस चीज का मिलेगा, प्रियम्बल में जस्टिस किस चीज की बात करता है, जस्टिस ऑफ सोशियो इकोनॉमी एंड पॉलिटी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रियम्बल गाइस, ठीक है। कीप वॉचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ एटीएस। अगला चैप्टर हम मिलते हैं, अगले चैप्टर में विल टेक द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कैसे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।